जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ, सबको तुम जागरूक बनाओ, अपने घर को खुशहाल बनाओ, शिक्षित नागरिक होने का फर्ज निभाओ। इस जागरूकता अभियान में साथ दो। जनसंख्या नियंत्रण में सबका फायदा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सब ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਸ਼ लेसी भी करते हैं, डॉक्टर में सुपर स्पेशलिटी आई डिजीज सेंटर पाई। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 17% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੀ हर 6वां इंसान जोड़ा है वो इंडिया का है। हर 6वां इंसान कितनी हैरानी की गल लगती है कि लैन खड़ी कर दो, हर 6वां बंदा इंडिया लगूगा अपन। तो 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆन ना दिता तो 1 नंबर ਤੇ ਆਪਾਂ आ जाएंगे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ हैं भी ਅੱਗੇ हाहाकार मची हुई है। आप ਹੁਣ कोरोना देख लो, रिसोर्स की कमी हो रही है, लेकिन कौन विचार करूगा। ये विचार सानू खुद ਨੂੰ करना पऊगा। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ਤੇ विचार करके ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, अपने कंट्री ਨੂੰ करिए, अपने संसार ਨੂੰ करिए। विश्वास ने भी जनसंख्या को बढ़ाया है, हमारी अशिक्षा ने हमें खूब फंसाया है। सोचो जरा, जनसंख्या बढ़ाकर हमने क्या पाया। जी ओवर पॉपुलेशन हैगी इंडिया ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਕੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਫੂਡ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। डिक्रीज ऑफ दी फॉरेस्ट एरिया, जंगलात एरिया घट रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, धरती का पोल्यूशन, ये करके अपने बड़े माड़े असर हो रहे हैं। एजुकेशन का बहुत माड़ा असर हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस, साढ़े जो रिसोर्सिस है एनर्जी के वो घट रहे हैं। तो हाइजीनिक कंडीशन जो बहुत भैड़ियाँ हो रही हैं, ये कुछ असर हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन इंडिया के। खास करके लास्ट जो इको डिग्रेडेशन। जनसंख्या नियंत्रण में सबका फायदा, जात पात और धर्म से ऊपर उठो, सभ्य समाज का यही है कायदा। जी इको डिग्रेडेशन हैगी जो ओवर पॉपुलेशन जी हैगी वो इको डिग्रेडेशन करती है। साढ़े किवें हुंदे आ हवा का, पानी ते धरती जिहड़ा है, ते नॉइज़ पोल्यूशन हुंदी है। अनहाइजीनिक कंडीशनस हैगियां ने, डिफोरेस्टेशन हुंदी है, लीडिंग टू दी फ्लड एंड सॉयल इरोजन्स। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਕੋ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਆਪਸ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ।
बिकॉज मैं अखा डॉक्टर हैगा, शायद बहुत सारे समझते होंगे कि शायद इस पॉपुलेशन डे ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਇੰਨੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਨਾਪਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਪॉपुलेशन ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਈਵਨ ਓਵਰ ਡਰੱਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਜੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਟੋਬਲੇਸ਼ੀਆ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। और साढ़े को चाहे भले ही पेशेंट घट गए लेकिन अज भी साढ़े जिम्मे आप आई बैंकिंग का काम करते हैं, सेवा करते हैं, कॉल ट्रांसप्लांट की, तो अजे भी विटामिन पेशेंट साढ़े को आते हैं। स्क्विंट वाले पेशेंट जोड़े है टेढ़ापन वाले बच्चे है, नंबर ऑफ ज़्यादा है पर केयरिंग नहीं है, ओवर पॉपुलेशन है, इग्नोर हो जाते बच्चे, इग्नोर हो जाते हैं बच्चे स्क्विंट है। मायोपिया बच्चे चश्मे वो लगते पे ने, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम अपना कोरोना हो के हटिया, बच्चे घर बैठे ने, सो इनडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने चश्मे लग रहे हैं। ये भी एक पॉपुलेशन ज़्यादा होता है कि आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी जनरेशन जी है ज़्यादा उन्होंने लाइफ स्टाइल ज़्यादा हो गया, तो चश्मे लगते पे क्योंकि वो इनडोर हो गए पे। इसलिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इनडोर होने करके अखां की समस्या बढ़ गई हुई है, जो कंप्यूटर यूज करते हैं अखां ड्राइनेस हो रही है, समस्या आ रही है। तो आई इंजरी हजे भी है, बच्चे खेलते हैं कड़ा सिट्टा लवा लेंगे ने, हजे भी वही आप पॉपुलेशन ज़्यादा होने करके ज़्यादा इंडस्ट्री डांस पॉपुलेशन करके बच्चे खेलते हैं तो अखां सिट्टा हजे भी लवाते आ रहे हैं। तो खास करके जोड़े आप पहला जनरेशन की गल की थी, थर्ड जनरेशन जी है, सैकेंड जनरेशन के जोड़े डायबिटीज बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज के कारण जोड़े है अपने वो रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस हो रही है। आप देखो खुशहाल हो गए हैं, लेकिन जो 50-60 साल की उम्र जाके सानू डायबिटीज हो जाती है, पर केयरिंग नहीं हैगी, आप अपनी हेल्थ प्रति केयर नहीं है, तो अखां दे नुकसान होंदे ने, वो सदीबी होंदे ने, ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो एक बड़ी समस्या होर आ रही है, जिवें ओजोन लेयर जी जिद्दां उपर खड़े आसमान दे विच घट रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवर एक्टिविटी दे नाल साडे कैटरैक्ट भी ज़्यादा आ रहा है, चिट्टा मोतिया भी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए ये भी साडी इस पॉपुलेशन दे नाल साडी इस एनवायरनमेंट नाल इन्वॉल्व हैगा। से आखिर चाहे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जिवें जिवें एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हैगी है, तो अखां दे विच पर्दे होते उम्र के मुताबिक कमजोरी होकर एज रिलेटेड मैकुलेशन भी बढ़ रही हैं। सो आओ असीं जन्म तो लैके बड़ी उम्र तक जिहड़ी अखां समस्यावां हैगियां उन्होंने समझिए ते नाल आपां पॉपुलेशन नाल रिलेट करिए कि जो अपनी पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल होएगी, साढ़े रिसोर्सिस ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा अवेयर होवांगे, तो इन्हां बीमारियों तो जितों बचा जा सकता पर जरूर बचाएंगे। मैं दसना चाहूँगा साढ़े पिछले 30 सालों तो लगातार मैनू सेवा का मौका मिले, आप बेस्ट आई केयर जी वर्ल्ड सोचती उस तरह कोशिश करते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को अपने संभाल लीए। जिससे मैंने बड़ा मान की गल है कि साਡਾ हॉस्पिटल जोड़ा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब फुली NABH एक्रीडेटेड आई हॉस्पिटल है, डिवीजन का पहला हॉस्पिटल है लुधियाना जिले में। ये साड़ी कोशिश होती है कि हर डिपार्टमेंट जो अखां का है चाहे छोटे बच्चों वास्ते पीडियाट्रिक प्रॉब्लम जो कंजेंटल आप गल पहले की कैटेट की गल की है, वो आप सर्जरीज करते हैं, बच्चे सर्जरी करते हैं। विटामिन ए की कमी करके जो लोड हैगी है तो रेटिनोपैथी हो गया ना पेशेंट या कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गई है, वो आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। स्क्विंट वाले पेशेंट है टेढ़ापन वाले साढ़े को साढ़ा स्क्विंट क्लिनिक बड़ा डेडिकेटेड है, जिहदे साढ़े स्क्विंट डॉक्टर जोड़े है वो आके पेशेंट सर्जरीज करते हैं। फिर दूजे नंबर जोड़े आई इंजरी जोड़ी है आप राउंड दी क्लॉक 7 दिन आप अवेलेबल है, क्योंकि साढ़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, साढ़े को कोशिश होंगी है आई इंजरी मैक्स दिन अच्छा कर सके, वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो नाल जिहदे आप लेसिक सर्जरी है, चश्मादानी सर्जरी हो गई, फिर चिट्टे मोती के जोड़े है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बिना टाके तो लैंस वाले पेशेंट आप करते हैं। तो खास करके साढ़ा ज़्यादा ध्यान दिता जा रहा है डायबिटिक रेटिनोपैथी वास्ते साढ़े कोल जो शुगर वाले पेशेंट्स है मेडिकल रेटिना
ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਰੈਟਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਟਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਗਿਵ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈਐਮ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਲੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਲੇਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਲੈਂਸੀ ਨਗਰ।